Hello students. Today we will be starting exercise 7.2. Already we have discussed exercise 7.1 and some basic problems on this based on sign convention and some varieties of problems. Okay. Today we will be dealing exercise 7.2. This exercise is basically based on formulas. Okay. So I am not giving the formula. I will give you it in next video, all the formulas, or you can go in the book and you can get all the formulas in the before the exercise 7.2. I will be doing the question and I will be providing the formulas along with the solution. Okay. So let us begin the chapter. Before that, hope you all are well, and let us begin the exercise. Okay. Our exercise 7.2, question number 1. What is the question? Using the formula for compound angle, so that we have to show that our question is so that sin 45 degree minus sin 45 degree minus alpha is equal to cos 45 degree plus alpha is equal to 1 by root 2 cos alpha minus sin alpha. Okay. So this is our proof. We have to show this is equal to this equal to this. So before starting the solution, let me give you some formulas. First formula is sin A plus B. A plus B means there are two angles, okay, compound angle. See here, one angle, two angle. So sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Okay, student? And if it is minus, okay, then this sign will become minus. Means if plus, it will be plus. If it is minus, it will be minus. And another formula is cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. So this is the another formula. If it is plus, it will be minus, and if it is minus, the formula will change to plus. So we will be using this formula. Okay. So let us begin with first. This is our solution. Sin 45 minus alpha. Okay. So you can see this is sin A minus B formula. If I consider this A, this will become A minus B. So we know sin A minus B. See, I have given minus in second one. So it will also become minus. So our formula is sin A cos B minus cos A sin B. Okay. Sin A cos B minus cos A sin B. So we know sin 45 is nothing but 1 by root 2. So cos alpha minus cos 45 का वैल्यू हो गया 1 by root 2 sin alpha. 1 by root 2 कॉमन ले लो, तो cos alpha minus sin alpha. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो इसका दूसरा ये अगर हम लोग इसको पकड़े तो इसका RHS ये आ रहा है. अब हम लोग ये पकड़ रहे हैं अगेन cos 45 डिग्री प्लस अल्फा. सो सी, अगर इसको ए पकड़ेंगे इसको बी पकड़ेंगे तो क्या हो रहा है cos A प्लस बी. तो cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया cos A cos B माइनस sin A sin B. तो हम लोग उसको अप्लाई करते हैं. तो cos A cos B
माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1/√2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 साइन अल्फ़ा। 1/√2 के मान ले लो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर्मूला के ऊपर वैल्यू को बैठाना है। ठीक है स्टूडेंट, होप समझ में आया। तो हम लोग जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम क्वेश्चन है, तो उसे मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। साइन थीटा प्लस 60 डिग्री सॉरी यहाँ पे माइनस है, प्लस कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें प्रूफ क्या करना है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम लोग LHS को कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा साइन ए माइनस बी फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इस पर वैल्यू अपना अप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा कोस 60 का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, हाँ सही है, हाफ, माइनस कोस 60 का वैल्यू फिर से हो गया हाफ साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा कोस 30, तो कोस थीटा को वैसे ही रख दो, कोस 30 का वैल्यू हो गया √3/2। ठीक है, माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन 30 का वैल्यू हो गया हाफ। समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिए हम लोग, कोस थीटा साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए स्टूडेंट। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और हमें क्या दिख रहा है, साइन थीटा 1/2। तो यहाँ पे हाफ साइन थीटा प्लस हाफ साइन थीटा, तो हाफ और हाफ का एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, 2/2 साइन थीटा, कैंसिल आउट होके क्या मिल रहा है हमें, साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा RHS का वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों ही क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया, फॉर्मूला के बेसिस पे किया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला बेसिस पे है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। कोस ए
प्लस इक्वल टू हाफ। तो हमें प्रूफ करना है cos 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो स्टूडेंट अगर हम इसको a पकड़ते हैं और इसको b, तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, ये भी a है और ये b। अब हम लोग फॉर्मूला को मैच करना को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, cos a साइन b प्लस साइन a cos b। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे आता है हमारा, अगर हम लोग इसको cos a और साइन एक साथ कब होता है, जब हमारा फॉर्मूला साइन से रिलेटेड हो। जब फॉर्मूला साइन पे हो a और b, अब सिंस यहाँ पे प्लस है तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो यहाँ पे भी सेम है, देखो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो हम डायरेक्टली LHS पे यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, LHS इक्वल टू, तो हमारा फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस b, a वैल्यू हो गया 70, b वैल्यू हो गया 10। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, साइन 70 प्लस 10 हो गया 80। ठीक है, साइन 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन 80 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट बुक पे क्वेश्चन कुछ और था, मैंने थोड़ा एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो हम लोग बुक वाला क्वेश्चन करते हैं। बुक में क्वेश्चन क्या है, cos a cos b प्लस साइन 70 साइन 10 इज इक्वल टू हाफ। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos a माइनस b का फॉर्मूला हो गया। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो LHS इक्वल टू cos a माइनस b। तो क्या मिल रहा है हमें, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 1/2, जो RHS का वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, ये क्वेश्चन बुक का है, थोड़ा मिसप्लेस हो गया इसलिए आंसर दूसरा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं फिर से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करो। ये क्या दिख रहा है हमें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो उसी को हम अप्लाई कर देंगे LHS पे। तो LHS इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है हाफ, जो RHS के बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब हम लोग जाते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पे। अभी तक हमने साइन और कॉस के ऊपर क्वेश्चन किया, अभी हम टेन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी
इंटू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 10 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब स्टूडेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी आप 10 से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, पर हमेशा नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपके सिलेबस पे जो है वो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो 10 का फॉर्मूला क्या है, बट यहाँ पे 10 का फॉर्मूला वैसा कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग इसको अलग टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे देखो एंगल कौन कौन सा है, 10 और 35। व्हाट आर द एंगल्स प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, 10 एंड 35। तो आपको ऐसे करना होगा कि कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लो। स्टैंडर्ड वैल्यू, तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 30 45 60 90 0। ठीक है, उसी स्टैंडर्ड वैल्यू से किसी एक या एक को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने 30 प्लस 45 किया, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन करो 45 माइनस 30 करो। ठीक है, करने के बाद क्या होना चाहिए, हमारा जो एंगल है वो सेम आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें लाना क्या है, 10 और 35। तो अगर 45 को हम लोग तोड़े तो क्या मिलेगा, 10 प्लस 35। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगल को प्लस या फिर माइनस करो। अगर दोनों एंगल मिल रहा है तो उसी से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, प्लस 10 प्लस 35। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 10a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, हमेशा प्लस नहीं हो सकता, कभी माइनस भी हो सकता है। कभी 60 माइनस 45 क्वेश्चन में दिया रहेगा 15 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं, या फिर 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दे दिया 75 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे 45 प्लस 30 डिग्री। तो प्लस माइनस डिपेंड करेगा आपके ऊपर, जैसे क्वेश्चन पे दिया रहेगा। 10 और 35 है, तो हमें पता है, वी नो दैट 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस 35 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हम लोग लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इक्वल टू 10 प्लस 35 डिग्री। 10 प्लस 35 इज नथिंग बट 45, और हमें पता है 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 10a प्लस b। तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस 10a 1035 इज इक्वल टू 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट दिख रहा है कि RHS पे सिर्फ 1 है, तो 1 को अकेले रख दो। तो 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री प्लस
35 डिग्री, और इसको इधर लेके जाने से क्या हो गया, प्लस हो गया, 10 डिग्री 10 35 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हमेशा 10 के क्वेश्चन पे प्रोसीड लाइक दिस, डोंट गो ऑफ सर्चिंग द फॉर्मूलाज, डू सब्ट्रैक्शन और एडिशन एंड सी which formula is applicable here and apply that formula. Okay. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा, कॉस अल्फा प्लस गामा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस गामा। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू साइन बीटा माइनस गामा। तो हमें प्रूफ करना है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो सॉल्यूशन जाने से पहले LHS, तो LHS हो गया हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस गामा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस गामा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो साइन A प्लस बी, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। आप इस टोटल एंगल को पकड़ लो A और ये टोटल एंगल को पकड़ लो B, क्योंकि सेम एंगल यहाँ पे भी अप्लाइड है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको A कंसीडर करें और इसको B, तो हमें क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन A माइनस B का। ठीक है स्टूडेंट, तो हम वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या लाइन हो जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं साइन A प्लस A माइनस B। तो A का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस, ठीक है, बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, साइन बीटा माइनस गामा, जो हमारा RHS का वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 1045 प्लस अल्फा इंटू 1045 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमें प्रूफ करना है कि 1045 डिग्री प्लस अल्फा इंटू 1045 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ नहीं है जो हम पिछले क्वेश्चन पे अप्लाई किए थे। सो हियर वी विल प्रोसीड विथ आवर फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ब्रेकिंग द एंगल्स। यहाँ पे एंगल तोड़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, 10a प्लस
10b बाई 1 माइनस 10a 10b इंटू, यहाँ पे माइनस का है तो 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b। ठीक है स्टूडेंट, जस्ट साइन चेंज, प्लस होने से ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और माइनस होने से ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, तो 1045 का वैल्यू हो गया 1 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 1 माइनस 1045 का वैल्यू हो गया 1 इंटू 10 अल्फ़ा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा इंटू 1045 का वैल्यू 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 1 प्लस 1 इंटू 10 अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 1 प्लस 10 अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल रहा है 1। तो ये हो गया हमारा RHS और ये था हमारा LHS। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दिस वीडियो लेट अस फिनिश द लेक्चर ऑफ टुडेज। ओके, तो यहाँ पे आज यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।